Hello everyone. So JMS 2022 25th July का क्वेश्चन है ये on quadratic equation. If the numbers appeared on two throws of a fair dice are alpha and beta, then the probability that this quadratic x square plus alpha x plus beta is greater than zero for all x belongs to R. So देखो simple question. भाई this quadratic is always positive for all x. What is the condition for ax square, quadratic ax square plus bx plus c should be greater than zero for all x belongs to R? Condition is a is greater than zero, that is coefficient x square is positive and discriminant जो है that is less than zero. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कंडीशन दैट d स्क्वायर, दैट इज सॉरी d शुड बी लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0. तो अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, दैट मींस यू कैन सी दिस इज अल्फा स्क्वायर minus 4 beta should be less than 0. So you can see alpha square should be less than 4 beta. This is the condition जो आपको अप्लाई करते हैं. करेक्ट. नाउ a fair dice is if the numbers appeared on two throws of a fair dice are alpha and beta. ठीक है. तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गया. सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस विल बी 36. 6 पॉसिबल नंबर्स होंगे हर डाइस पे, तो 6 into 6 that is 36 is the sample space. और फेवरेबल क्या होंगे? फेवरेबल which satisfy this condition. तब अल्फा और बीटा जो होंगे, अल्फा और बीटा there will be numbers between 1 2 3 4 5 और 6. ये नंबर्स पॉसिबल है. तो what are the possible combinations of alpha and beta such that this condition is satisfied? ठीक है. तो अब वो चेक कर लेते हैं. तो भाई स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे बीटा इज इक्वल टू 1. अगर बीटा का वैल्यू 1 है, दैट मींस अल्फा स्क्वायर विल बी less than 4. So what will be the values of alpha? Alpha can be equal to 1, it can be equal to 2. बराबर, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 पुट करोगे, दिस इज 1, अल्फा 2. अच्छा 2 पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी डोंट वांट इक्वल टू 4. ठीक है, वी वांट लेस देन 4, तो ओनली 1, राइट. नेगेटिव वैल्यूज पे जाना ही नहीं है. इफ आई से बीटा इज इक्वल टू 2, अब अगर बीटा 2 होगा तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 8. So what can be the possible values of alpha? Alpha will be equal to 1 and 2. 3 पे 9 हो जाएगा तो क्रॉस कर जाएगा. This is beta equal to 3. Beta equal to 3 पर this is alpha square is less than 24. Correct? Sorry, 12, not 24, 12. ठीक है, beta is equal to 3 हमने पुट कर दिया. So alpha square less than 12, that means alpha will be equal to 1, 2 or 3. If I say beta is equal to 4, then this is alpha square is less than 16. So what is alpha? Alpha will be equal to 1, 2, 3, 4 पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, 4 16 हो जाएगा. ठीक है. Then this is beta is equal to 5. So alpha square is less than 20. So what are the possible values of alpha? Alpha will be equal to 1, 2, 3, 4, 4. That's it. ठीक है, 4. I hope this is clear. And last, that is beta is equal to 6. If I say beta is equal to 6, that means alpha square will be less than 24. So 24 के corresponding, what can be the values of alpha? 1, 2, 3, 4 and it can be equal to 5 also. 20, नहीं 5 नहीं होगा because 25 हो जाएगा इस पे. ठीक है, तो till 4 भी है. So what are the possible values of, what are the favorable cases? You can say 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? देखो 1 और यहाँ से 1 plus 2 3, 3 6, 3 9, 9 plus 8, 9 plus 8, that is 17 cases. टोटल there will be 17 cases. मतलब 17 pairs of alpha and beta we have. So ठीक है. So what is the probability? The probability will be equal to favorable, that is 17 divided by sample space, which is equal to 36. So what is the answer? This is 17 by 36 is the answer for this question. So I hope this is clear. Okay. So this is the next question. JMS 2022 25th July shift 1. The question is, let A and B are non-zero real numbers. A and B are non-zero real numbers. P and Q are the roots of this equation. P and R are the roots of this equation and Q and S are the roots of this equation. ठीक है, such that 1 by P, 1 by Q, 1 by R, 1 by S
are in AP, then you have to find the value of 1 by A minus 1 by B. 1 by A minus 1 by B. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. So see, first thing is just observe this. Let's say you have this equation x square minus 8x plus 2a equal to 0. The roots of this equation are p and r. Correct. So I can say what is the sum of roots of this? This is 8a. Okay. What is the sum of roots of this equation? You can say this is p plus r. This is equal to 8a and pr. This is equal to 2a. Correct. अब और सेकेंड आपको जो इक्वेशन गिवन है दैट इज दिस x square plus 12bx plus 6b equal to 0. The roots of this equation are q and s. So this is q and s are the roots of this. मतलब q plus s is equal to minus 12b and this is qs is equal to 6b. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी. Now how can you use this? You can see देखो p 1 by p 1 by q 1 by r 1 by s are in AP. इसका मतलब क्या हुआ? Can we say these numbers are in AP? 1 by p 1 by q 1 by r in AP. And if you have three numbers a b c are in AP, that is 2b is equal to a plus c. So can I say this is 2 by q will be equal to 1 by p plus 1 by r. हमने क्या किया? We have taken these three numbers. इन तीन नंबर्स को AP में बना दिया. And we know if three numbers are in AP, then 2b is equal to a plus. हमने वो किया प्रॉपर्टी यूज कर. So you can clearly see this is 2 by q is equal to p plus r divided by pr. And we know what is pr, what is p plus r. You can clearly see what is this. This is 2 by q is equal to p plus r is 8a, pr is 2a. इनका ratio you can see this is equal to 4. So what is the value of q? Q is equal to 1 by 2. Q is equal to 1 by 2. Correct. Now same logic से अब इधर भी solve कर लेते हैं. You can see if 1 by q, 1 by r, 1 by s, if these three numbers are in AP, that means again 2 by r is equal to 1 by q plus 1 by s. Again AP का property हमने use कर लिया. Now what is this? This is you can see 2 by r is equal to q plus s divided by qs. So यहाँ से again q plus s qs minus 12b 6b. तो ये क्या हो गया? minus 2. तो यहाँ से you can say what is this? 2 by r is equal to minus 2. That means r is equal to minus 1. Correct. So you have got the value of r. You have got the value of 1 by 2. Q there is 1 by 2. अब आपको देखो 1 by a 1 by b required है. तो can we say if you have to find the value of a, you can just check this equation. You can just check this equation. ये इक्वेशन को देखो. R का वैल्यू we know. R is equal to minus 1. And we know that R is the root of this equation. अगर R इसका रूट है मतलब उसको satisfy करेगा. मतलब minus 1 जो है will satisfy this equation. तो can I say if I put R equal to 1, R equal to minus 1, मतलब R इसमें put कर दिया हमने तो minus 1 that is 1 minus that is plus 8a plus 2a is equal to 0. So यहाँ से what is this? This is 10a is equal to minus 1. That means a is equal to 1 by a. 1 by a is equal to minus 10. You can see 1 by a का वैल्यू आ गया minus 10. अब you have to find the value of b. तो b के लिए use this equation now. इस equation को use कर लेते हैं. You can see we have got the value of q. Q is equal to 1 by 2. Q is the root of this equation. मतलब 1 by 2 is the root of this equation. So 1 by 2 will satisfy this equation. So if I put 1 by 2 in this equation, this will become 1 by 4 is equal to. This is sorry. If I put Q is equal to 1 by 2, so this is 1 by 2. That is 1 by 2 का square 1 by 4 plus 1 by 2 put करोगे. This is 6b plus 6b equal to 0. That is b is equal to this is 12, or you can say directly 1 by b. 1 by b will be equal to minus 48. You can check the calculation. So we have got what is 1 by a, 1 by b.
right? You can say this is 12 by 4, that is 48, minus 48, correct? So you can see 1 by a plus 1 by b. अब आपके पास 1 by a का वैल्यू क्या है? दिस इज -10, यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज -10 और 1 by b का वैल्यू -48, तो दिस इज +48. So what is the answer? This is 38. So what is this value? This is equal to 38. So I hope this is clear कैसे इसको हमने सॉल्व किया है. सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एपी हमने यूज किया, देन यू हैव सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एंड देन वी कैन गेट द आंसर. ओके. So next question is, for some values p, q, r which are real numbers, not all have same sign. Not all have same sign. ठीक है. One of the roots of this equation is also a root of this equation. Then what is the value of q square by p square plus r square by p square? इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. So you can see, देखो इसको तो आप बहुत इजीली डायरेक्टली इसके रूट से फाइंड कर सकते हो. ये तो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा. दिस इज x plus 4 into x minus 2 इक्वल टू 0. मतलब x क्या होगा? दिस इज 2 और -4. ये हमारे पास कंडीशन है. ठीक है. अब the condition is one of the roots of this equation is also the root of the second equation. ठीक है. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2p 2q p प्लस r x एंड दिस इज प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0. ये आपके पास कंडीशन है. तो आप इसको ध्यान से देखो. एक तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग -p प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला यूज कर लो. अदरवाइज इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इज p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pqx प्लस q स्क्वायर. ये देखो ये क्या गया? p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2pqx और ये प्लस q स्क्वायर एंड दिस इज प्लस q स्क्वायर x स्क्वायर. दिस इज माइनस 2qrx और ये प्लस r square. This is equal to 0. ये आपके पास कंडीशन है. And you can clearly see this is a perfect square. This is px minus q whole square plus this is qx minus r whole square equal to 0. अब अगर आपके पास ये दो क्वांटिटीज which are square quantities, this is they are always non-negative. तो क्योंकि सब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. So now अगर ये दो नॉन सम ऑफ स्क्वायर क्वांटिटीज 0 है, that means both have to be 0 because इनका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कभी नहीं हो पाएगा. तो दैट इज px minus q should be 0 and qx minus r should be equal to 0. यहां से आप देखो क्या आ गया? x is equal to x can be equal to क्या हो सकता है? q by p and this is also equal to x is equal to q by p and x is equal to r by q. ये आपके पास आ गया. ठीक है. तो यहां से देखो अब x का वैल्यू q by p is equal to r by q आ गया. Now question में it is mentioned that this equation, one of the roots of this equation is also the root of this equation, second equation. अब इसके जो रूट्स हैं वो 2 और -4 है. तो ये जो x होगा वो या तो 2 का वैल्यू 2 होगा या -4 होगा. करेक्ट. तो अब 2 we will take x is equal to 2 or x is equal to -4. वो कैसे डिसाइड करेंगे? That is for that it is given in the question that not all have same sign. सबके सेम साइन नहीं है. सबके सेम साइन नहीं है मतलब क्या हुआ? p q r ऑपोजिट साइन के पॉसिबल है. सेम साइन क्या होगा तो फिर पॉजिटिव सब कुछ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा या फिर नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है. और आप ध्यान से देखो सेम साइन के नहीं है इसका मतलब हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे? दिस इज इक्वल टू -4. क्योंकि अगर हमने 2 रखा तो दिस इज p and q will be of same sign, r and q will be of same sign. करेक्ट. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? देखो q स्क्वायर बाय p स्क्वायर. व्हाट इज q स्क्वायर बाय p स्क्वायर? दिस इज 16. ठीक है. और यू कैन से r बाय, अब यहाँ से आपके पास ये आ गया. देखो q स्क्वायर बाय p स्क्वायर 16. आपको q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर फाइंड करना है. तो दिस वी हैव फाउंड, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर. अब r स्क्वायर बाय p स्क्वायर कैसे आएगा? तो दिस इज, यू कैन इजीली चेक दिस. यू कैन सी दिस इज q इज इक्वल टू -6p, सॉरी -4p एंड r इज इक्वल टू -4q. ये आपके पास. ठीक है. r स्क्वायर और देखो
वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन r एंड p, r और p. तो q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज r इज इक्वल टू -4 और q जो है दिस इज -4p, ये -4p. So what is r by p? R by p is equal to 60. You can see this is r by p is equal to 60. तो r by p 16, तो r square by p square क्या हो गया? This is r square by p square is equal to 256. So we have got, you can see q square by p square is equal to 16 और r square by p square is 256. तो टोटल सम क्या हो गया? इनका ऐड कर दो, 16 plus 256. So what is this value? This is 272 is the answer for this question. ठीक है? So I hope this is clear. 272, correct? Now the question is JEE Mains 2022. The minimum value of sum of squares of the roots of this equation. ठीक है? तो आपके पास इक्वेशन है x square, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. This is 3 minus ax plus 1 minus 2a equal to 0. This is the equation, and the question is the minimum value of squares of the roots of this equation. तो यहाँ पे देखो, this is let's say alpha and beta are the roots. ठीक है? You have to find the minimum value of sum of squares. So sum of squares is alpha roots is sum of the squares of the roots is alpha square plus beta square. What is alpha square plus beta square? This is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now what is sum of roots of this equation? Alpha plus beta. This is minus 3 minus a, which is a minus 3. ठीक है? And what is product of roots? Alpha beta. Product of roots is, ये sum of roots यहाँ से आ गया. Product of roots this is 1 minus 2a. अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं. This is a minus 3 whole square minus 2 alpha beta, which is 1 minus 2a. So now you can see this is a square minus 6a plus 9 minus 2 plus 4 plus 4a. Correct? So you can see this is equal to a minus a square minus 2a plus 7. ये आपके पास आ गया. ठीक है? a square minus 2a plus 7. This is the sum of squares of roots, right? अब आपको क्या फाइंड करना है? इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो you can clearly see what is this? This is a minus 1 का whole square plus 6. a minus 1 whole square plus 6. You can see a square minus 2a plus 1 plus 6 will become 6 plus 7 will become 6 will become 7. तो ये जो आपके पास sum of the terms आ गया है, this is a minus 1 whole square plus 6. तब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या होगा भाई? दिस विल बी मिनिमम व्हेन दिस क्वांटिटी इज मिनिमम. और ये मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है. स्क्वायर क्वांटिटीज a minus 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मिनिमम से मिनिमम दिस इज 0. तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? s minimum, this is equal to 6. So what is the answer? This is equal to 6. The minimum value will be equal to 6. ठीक है? I hope this is clear. Now this is the question from JEE Mains 2022 July. If alpha and beta are the roots of this equation, which is in terms of log, okay, then the equation whose roots are alpha plus 1 by beta and beta plus 1 by alpha. हमको ये फाइंड करना है. ठीक है? इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है. तो अब इसमें देखो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ सम लिख देंगे, बट इसमें आप देखो वी हैव दीस टर्म्स. इन टर्म्स को थोड़ा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा. ठीक है? तो हम यहीं पे मैनिपुलेट करके देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्रेशन. नाउ सी if you talk about this expression in terms को देखो यहाँ से. Let's say if you take 3 raised to log 5 base 3, root of log 5 base 3. ठीक है? I want to simplify this. इसको आप ध्यान से देखना. This is, I can say 3 raised to log 5 to the base 3 divided by under root of log 5 to the base 3. Correct? What I have done is I have written root x as x by root x. ऐसा लिख सकते हैं x is equal to x by root x. Correct? तो ये लिखा देखो, root of something is equal to this number divided by square root. Now we can say this is equal to 3 raised to log 5 to the base 3, and if you interchange number and base, log becomes reciprocal.
तो हम इस 5 और 3 को अगर इंटरचेंज कर दें तो दिस विल बिकम इनटू log 3 और ये बेस 5। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे इन 5 और 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया तो वो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस इज 3 रेज टू log 5 to the base 3 raised to under root of log 3 base 5, and we know this is log 5 to the log 3 raised to log 5 to the base 3 is equal to 5, because we know the property a raised to log n to the base a, this is equal to n only. So what is this value? This is 5 raised to under root of log 3 base 5, correct? So now you can clearly see this is 5 raised to log 3 base 5, मतलब this value is equal to this value. So just observe this, ये दोनों टर्म देखो सेम है, करेक्ट? मतलब this value is equal to 0, ये जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 0. I have proved that these two values are equal, correct? So this part is clear. I think this part is clear. अब same logic देखो, I can apply here also. I can apply the same logic here. Exactly same logic. कैसे? You can see here we have 3 raised to log 5 to the base 3 raised to 1 by 3. We have this, correct? So I can say this is equal to 3 raised to log 5 to the base 3 into log 5 to the base 3 raised to, अब यहाँ पे देखो this is 1 by 3, 1 by 3, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको minus 2 by 3, ठीक है। एक काम करते हैं, wait, let me write it. This is 3 raised to log 5 to the base 3 upon, this is log 5 to the base 3 raised to 2 by 3. This is clear? ये जो 1 by 3 था इसको हमने लिख दिया 1 minus 2 by 3, तो ये 1 minus 2 by 3 से you can see this, and this I can clearly see this is equal to 3 raised to log 5 base 3, right? ये इसके साथ कंबाइन कर दिया और इसको रेसिप्रोकल करा दिया, तो दिस इज log 3 base 5 raised to 2 by 3. आई होप दिस इज क्लियर। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने इसको हमने 5 और 3 को इंटरचेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे भी हम देखो 3 और 5 को इंटरचेंज कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया, और इस पावर को हमने इस पे रख दिया। सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 5 raised to log 3 base 5 raised to 2 by 3. तो जो कैलकुलेशन आपने एक्जैक्टली फर्स्ट में क्या है, यू कैन एक्जैक्टली फॉलो द सेम थिंग इन द सेकंड आल्सो. सो नाउ यू सी, अब तो देखो ये दोनों टर्म सेम आ गए, 5 रेज टू log 3 base 5 रेज टू 2 by 3, मतलब दिस टर्म इज आल्सो 0, दिस टर्म इज आल्सो 0. तो इफेक्टिवली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² माइनस 5x, क्योंकि टर्म 0 हो गया, प्लस 3 इक्वल प्लस 3 और minus 3, sorry, this is minus 3 will be 0. I hope this is clear. ये x² plus 5x 3 और ये 0 हो गया, तो ये -1 मतलब -3. ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया, और इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा. I hope this is clear. Now the question is you have to find the equation whose roots are alpha plus 1 by beta and beta plus 1 by alpha. हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके ये रूट्स हैं, ठीक है. So now let's proceed. So you can see भाई अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज 5 और अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3. वी हैव टू फाइंड दैट इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस. तो आप ये देखो ध्यान से, व्हाट आर द रूट्स, दिस इज अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, करेक्ट. अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा क्या है -3, तो ये क्या हो गया -2 by बीटा और -2 by अल्फा. So we have to find that equation whose roots are -2 by alpha, -2 by beta. अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. What is the sum of roots of that quadratic equation whose roots are these values, ठीक है. ये क्या गया, हमने अल्फा बीटा का वैल्यू -3 पुट कर दिया, तो वो क्या होगा -2 by बीटा -2 by alpha, sum of roots which will become -2 alpha plus beta divided by alpha beta, which you can easily check this. This is equal to -10 divided by alpha beta is -3, तो ये -3 मतलब 10 by 3 आ जाएगा.
सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज p विल बी इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करोगे 4 बाय अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज -3, मतलब ये -4/3 होगा। तो व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of roots is 10/3 and product of roots is -4/3? This is x square minus sx, sum of roots sx, ठीक है, plus product of roots, this is -4/3 is equal to 0. So this is 3x square minus 10x minus 4 equal to 0. So this is the quadratic equation whose roots are these values, alpha plus 1 by beta and beta plus 1 by alpha. So I hope this is clear. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. दिस इज 3x square minus 10x minus 4 equal to 0. That is option B is the answer for this question. ठीक है. So the next question is sum of all the real values of x for which this equation is these two are equal. ठीक है. तो आपको इस इक्वेशन का सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज फाइंड करना है. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं then that is the best way to solve this. तो सिंप्लीफाई करने के लिए what you can do is you can just express this numerator in terms of denominator. आप क्या करो, इसको देखो x square plus 3x plus 10 प्लस जो रिमेनिंग टर्म बचेगा दिस इज 2x square, you can see 3x square, तो ये 2x square हो गया, minus 9x and this is 3x, so this will be minus 12x. So you can see 3x minus 12x will become minus 9x. ठीक है, और ये प्लस 7 कर देते हैं, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, डिवाइड बाय, ये सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा ही कर सकते हैं. करेक्ट. एंड दिस इज इक्वल टू, इसको भी आप ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 प्लस 5x स्क्वायर रिक्वायर्ड था, तो मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर, यू कैन सी ये 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया. 5x we want -7, तो -12x, तो यू कैन सी -12x और प्लस 5x -7 हो जाएगा. ठीक है, प्लस 7 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर 5x प्लस 12. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, यू कैन सी, और अब आप ध्यान से देखो दोनों साइड पे सेम टाइप का एक्सप्रेशन आ गया. करेक्ट. सो यू कैन सी हियर इफ आई डिवाइड दिस इज 1 प्लस 2x square minus 12x plus 7 divide by x square plus 3x plus 10. This is equal to 1 plus, इनको डिवाइड कर दिया हमने, 2x square minus 12x plus 7 divide by 3x square plus 5x plus 12. I hope this is clear. So now you see ये तो कैंसिल हो गया 1 ठीक है. तो यहाँ से क्या हो सकता है भाई, हम कॉमन लेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, या तो ये 0 हो जाए. ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इक्वल हो जाए. ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, और दिस, तो यहाँ से इसके अगर आप क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x, हमको इसके रियल रूट्स का सम फाइंड करना है. तो पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं. ठीक है, तो इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 144 b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसका d ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे. तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 6. इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 6. यू कैन क्लियरली सी. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट इज द इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. अरेंज कर दिया हमने इसको. ठीक है, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड यू कैन क्लियरली सी इसके कोई रियल रूट्स नहीं है. You can see discriminant less than 0 है, 1 minus 4, मतलब यहाँ का कोई रूट्स नहीं आने वाला है. तो इससे जो रूट्स आएंगे उसी वही रियल होंगे, उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 6. अब इसमें देखो एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक ये होता है कि सम ऑफ रूट्स इसका लिख दिया 6 और इसका सम ऑफ रूट्स लिख दिया -1 और उसको ऐड कर दिया.
दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब रियल रूट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So this is the next question. Next question is alpha beta are the roots of this equation, and 1 by alpha square plus 1 by beta square 1 plus 1 are the roots of the equation this. Then roots of this equation are. तो देखो इसमें तो आप भाई इसके रूट्स पे कमेंट करना है, तो आप अगर a और b फाइंड कर लोगे तो you can easily solve this. और a और b फाइंड करने के लिए it is given in the question that these values are the roots of this equation. तो sum of roots and product of roots अप्लाई कर देते हैं. So this is sum of roots is minus a. इसका sum of roots क्या होगा? minus a. What is this? This is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 2. इन दोनों को ऐड कर दो, sum of roots. And how will you get this? This is alpha square plus beta square divide by alpha square beta square plus 2. ये हमारे पास एक्सप्रेशन. This is minus a. अब हाउ विल यू गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तो ये तो स्टैंडर्ड तरीका होता है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स विल बी रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू रूट 6, राइट। सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 रूट 6, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 6, 2 माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6, दिस इज 6 और ये प्लस 2, राइट। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज, यू कैन चेक दिस इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 6 बाय 6 प्लस 2. This is clear? Yes. This is 2 का फैक्टर, सॉरी 3, 2 का फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज 3. सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 माइनस रूट 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 7, ठीक है। और तो ये आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 7 डिवाइड बाय 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. Now what is the value of b? b is the product of roots. The product of roots, that is b is equal to इनका product, which is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 plus 1 by alpha square beta square. You can clearly check this. इसको आप multiply करोगे, you'll get this value, ठीक है। और इसका value you can easily find. This is alpha square plus beta square divided by अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने यहाँ पे चेक किया है अभी. दिस इज 2 माइनस 2 रूट 6, 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज 6. दिस इज 6 प्लस 1 by 6. So just check the calculation. This is 2 minus 2 root 6 plus 6 plus 1 upon 6, right? So this is 8 9 minus 2 root 6 divided by 6. ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? b का वैल्यू आ गया, ठीक है. So I hope clear. This is clear. a का वैल्यू and b का वैल्यू. This is the value of b. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको a plus b फाइंड करना है, ठीक है. सो व्हाट इज a plus b? वी कैन सी व्हाट इज a plus b. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखो ध्यान से, दिस इज, इसको आप 2 रूट 6 लिख लो माइनस 14 डिवाइड बाई 6, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? तो जैसे आप ऐड करोगे यू कैन क्लियरली सी 2 रूट 6 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 9 माइनस 14 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1. ऑलराइट, सो दिस इज माइनस 1 आ गया. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा दैट इज एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी इज माइनस 1, तो ये माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3x एंड दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन मिलेगा जो हमको रिक्वायर्ड है. अब इसके रूट्स पे कमेंट करना है.
तो उसके रूट्स पे कमेंट कर दो। रियल एंड बोथ नेगेटिव, रियल बोथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आया है, बी स्क्वायर माइनस 4, तो आपको समझ में आ रहा है दिस इज पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन 0 है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसका जो सम ऑफ रूट्स चेक करोगे, सम ऑफ रूट्स एस इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। बट अगर सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव, करेक्ट। तो बोथ द रूट्स नेगेटिव एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव, करेक्ट। सो व्हाट इज द आंसर, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, आप रूट्स फाइंड करके भी चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 4 मतलब √5, तो दिस इज √5 डिवाइड बाय 2 and you can clearly see both the values are negative value, that is option B is the answer for this question. ठीक है, so I hope this is clear, right? So the next question is let fx is equal to ax square plus bx plus c such that f of 1 is 3, f of minus 2 is lambda, f of 3 is 4 and it is given f of 0, f of 1, f of minus 2, f of 3 का सम जो है that is 14, then you have to find the value of lambda। आपको lambda का वैल्यू फाइंड करना। देखो इससे तो आप देखो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, f of 0 क्या होगा, व्हाट इज f of 0, f of 0 is equal to c, x is equal to 0 पुट कर दिया, तो दिस इज c प्लस f of 1 जो है that is 3, क्वेश्चन में मेंशन है, f of minus 2 is lambda, so this is lambda, और f of 3 is 4, this is equal to 14, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। So this is c plus lambda जो है this is equal to this is 7, 14 minus, right। अब you have to get the value of lambda, तो आपको c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, right। तो उसके लिए क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है, देखो f of 1 is 3, if I put x is equal to 1, this is f of 1 which is equal to a plus b plus c, this is equal to 3, f of 1 is equal to 3, f of minus 2 is lambda, x is equal to minus 2 पुट करेंगे, this is 4a minus 2b plus c, this is equal to lambda, ये हमने x is equal to minus 2 पुट कर दिया, और x is equal to 3 पुट कर देंगे, 9a plus 3b plus c, this is equal to 4, ये हमारे पास है। अब हमको जो फाइंड करना है, you have to find the value of lambda, तो c का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, you can just see here, if I subtract these two, जैसे हम subtract करेंगे this minus this, ऐसे subtract कर दो, तो you can see this is 9 minus 4a which is 5a, ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टेक्निक कर रहे हैं हम, c को एलिमिनेट कर रहे हैं, देखो this is plus 5a, ठीक है, this is 9a minus 4a मतलब 5 है, ये 5b, c से कैंसिल हो जाएगा, this is plus is equal to 4 minus lambda, so you can see what is a plus b is 4 minus lambda divided by 5, correct। Now what is a plus b is c minus 3 minus c, this is 3 minus c, this is equal to 4 minus lambda divided by 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हमको जो फाइंड करना है, you have to find the value of lambda, तो लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या करो, यहाँ से c का वैल्यू 7 माइनस लैम्डा है, इसमें पुट कर दो, दिस इज 3 माइनस 7 माइनस लैम्डा, सो दिस विल बिकम 7 प्लस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 5, सो दिस इज -4, तो ये -20 प्लस 5 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, 4 minus lambda, so this is 6 lambda is equal to 24, lambda is equal to 4, so what is the answer, this is lambda is equal to 4, that is option D is the answer for this question। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस ये वैल्यूज पुट करना है, तीन इक्वेशन से सॉल्व करके to get the value of lambda। okay, I hope this is clear। so this is the next question, let alpha and beta, where alpha is greater than beta, are the roots of this equation, and Pn is equal to alpha raised to n minus beta raised to n, where n is a natural number, then we have to find the expression, value of this expression। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, so now see, देखो
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने काफी किए भी होंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी हो चुके हैं मेंस में और एडवांस में ऑल्सो। Pn is equal to alpha raised to n minus beta raised to n. तो वन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर आपको न्यूटन्स आइडेंटिटी पता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस मेथड वन, यू कैन से न्यूटन्स आइडेंटिटी। न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल के लिए आई कैन से दिस इज Pn is equal to alpha raised to n minus beta raised to n. I can say that a Pn plus b Pn minus 1 plus c Pn minus 2 will be definitely 0. ये न्यूटन्स आइडेंटिटी से हमने लिखा है। इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स आइडेंटिटी, मैं इसको भी बताऊंगा कैसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो व्हाट आर एबीसी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज 1 -1 -4. सो व्हाट इज दिस, दिस इज Pn minus 1 -4 Pn minus 2 equal to 0. क्या किया हमने, एबीसी जो है these are coefficient of x square x and constant term, ठीक है। so this is the relation. so यहाँ से you can say this is Pn minus 1, this is equal to 4 Pn minus 2. so this is the expression we have, relation between Pn minus 1 Pn minus 2. ये हमने डायरेक्टली न्यूटन्स आइडेंटिटी यूज किया है, ठीक है। now you can see if I put n equal to 1 n equal to हमको क्या देखो 15 14 13 ये यूज करना है। 16 अगर हमने n equal to 16 पुट किया, so this is P16 minus P15 will be equal to 4P13. correct, sorry 14 not 6 13 14 हमने n equal to 16 पुट किया, ठीक है। and if I put n equal to 15 here, this will become P15 minus P14 this is equal to 4P13. ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। एंड नाउ यू सी, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज यू कैन सी P16 minus P15 into P15 minus P14 is equal to 16 P13 into P14. ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा। और आप ध्यान से देखिए, इफ आई डिवाइड दिस और मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज P16 इंटू P15 माइनस P15। आप या फिर यहां से भी देख सकते हो, दिस इज ये जो आपको एक्सप्रेशन देखो P15 P16 P14 P16। आप ध्यान से देखो, इफ आई टेक P16 कॉमन फ्रॉम दिस विल बिकम P15 माइनस P14। और यहां से भी आप देखो माइनस P15 हम कॉमन ले लेते हैं, दिस इज P15 माइनस P14। यहाँ से हमने न्यूमरेटर कॉमन लिया, तो यू कैन क्लियरली सी P15 माइनस P14 कॉमन आ गया, तो दिस इज P15 माइनस P14 इंटू P16 माइनस P15, करेक्ट। तो ये आपका जो न्यूमरेटर है दिस इज P15 माइनस P14 और P16 माइनस P15 डिवाइड बाय P13 P14। तो यू कैन क्लियरली सी, अगर आप डिवाइड कर दोगे P13 बाय P14 से, यहाँ पे देखो ये P13 और ये P14, जैसे आपने डिवाइड किया दिस विल बिकम इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 16। तो ये तो हो गया, देखो आपने कैसे न्यूटन्स थ्योरम यूज किया और यू गॉट द आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है, न्यूटन्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे वी हैव हायर पावर्स। ये देखो बहुत बड़ी पावर्स में हमको डील करना था, 15 16 पावर्स में डील करना था। अदरवाइज देखो फिर आपको ये डिराइव करना पड़ जाता है, ठीक है। अब डिराइव करना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको नहीं आ रही, दिस इज 0 दिस इज 0, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, देखो अप्रोच क्या रहेगा, अगर आपको ये नहीं पता है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P15 P16 P15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नाउ यू सी भाई, जो मेथड 2 I can say what is Pn, this is alpha raised to n minus 2 into alpha square minus beta raised to n minus 2 beta square। ये आपको मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, ठीक है, ये डिराइव करने का तरीका। so what is this, I can say this is alpha raised to n minus 2 into alpha square। now what is alpha square? Alpha square, you can say alpha is the root of this equation, that means alpha square will be equal to alpha plus 4। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4, तो ये अल्फा प्लस 4 हमने पुट कर दिया। एंड सिमिलरली दिस इज बीटा रेज टू n माइनस 2,
और बीटा स्क्वायर क्या है, बीटा प्लस 2, एग्जैक्टली सेम लॉजिक. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज अल्फा रेज टू n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 अल्फा रेज टू n माइनस 2 माइनस बीटा प्लस 4 था ना, ये प्लस 4, दिस इज प्लस 4. ठीक है, बीटा रेज टू n माइनस 1 माइनस 4 बीटा raised to n minus 2. Open कर दे ब्रैकेट्स को. And now you see, if I take these two terms, this is alpha raised to n minus 1 minus beta raised to n minus 1. Alpha raised to n minus beta raised to n को हम pn बोल रहे हैं. तो what is this alpha raised to n minus 1 beta raised to n minus 1? This is pn minus 1 plus 4. If I take common 4 here, ठीक है, तो ये बनेगा alpha raised to n minus 2 minus beta raised to n minus 2, which will become pn minus 2. I hope this is clear. So what is the relation pn? Pn is equal to pn minus 1 plus 4pn minus 2, which is exactly same which we got. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिराइव करना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट एग्जाम में टाइम आपका सेव होगा. ठीक है, उसके बाद तो ये आपको समझ में आएगा कि उसके बाद क्या करना है. दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस. So this is the next question. If the sum of the squares of reciprocals of the roots alpha and beta of this equation is 15, then 6 times alpha cube plus beta cube whole square. इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो सी हियर, भाई ये कंडीशन क्यों गिवन होगा. देखो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आप फर्स्ट कंडीशन से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, कैसे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट, दैट मींस 1 by alpha square plus 1 by beta square, this is equal to 15. ठीक है, so this is alpha square plus beta square is equal to 15 alpha square beta square. अब यहाँ से देखो लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स माइनस लैम्डा बाय 3, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 by 3. ये आप इसमें पुट कर सकते हो. कैसे, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज 15 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय 3, सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर बाय 9 माइनस 2. व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज माइनस 1 by 3, so this will become plus 1 by 3. This is 15 and this is alpha beta whole square. What is alpha beta whole square? 1 by 9. Again this is 1 by 9. So you can clearly see this is lambda square by 9 is equal to, this is 5 by 3. Right, 5 by 3. So this is 5 by 3 minus 3, that is 1. Right, इसको आप चेक कर लो, this is equal to 1. So lambda square का जो वैल्यू है, this is equal to 9. मतलब लैम्डा का वैल्यू या तो 3 होगा या माइनस 3 होगा, दैट वी विल सी. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर. तो व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब. राइट, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b into a square plus b square minus ab. ये हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया. एंड वी नो दिस इज अल्फा प्लस बीटा. इसको अगेन यू कैन से दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सो दिस विल बिकम माइनस 3 अल्फा बीटा. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब आपका क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर फाइंड करना है. तो बेसिकली हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका होल स्क्वायर और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. करेक्ट, सो दिस इज 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी, एक काम करते डायरेक्टली हम वैल्यू लिख देंगे बाद में. दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर बाय 9, so this is lambda square by 9 into what is alpha plus beta whole square, this is lambda square by 9 minus 3 alpha beta is minus 1 by 3, so this is plus 1 by 3. ठीक है, ये इसका स्क्वायर क्या किया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया. देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 9 अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा माइनस लैम्डा बाय 3, इसका स्क्वायर हो गया. और ये 3 अल्फा बीटा इज माइनस 1 by 3 वैल्यू पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया. नाउ व्हाट इज अल्फा स्क्वायर बाय 9, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दो. 6 दिस इज 1
this is 1 plus 2, 1 plus 1 whole square. I hope this is clear. ये 1 हो गया, 1 plus 1, this is 2, 2 square, that is 4, 4 into 6, that is 24. So what is the answer? This is 24. Option B is the answer for this question. Easy question है. ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है. सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से ये वैल्यू फाइंड करो लैम्डा का, और बाकी यू कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. So now this is the next question. The sum of all the real roots of this equation. Sum of all the roots of this real roots of this equation. So basically आपके पास equation जो है that is e raised to x में equation है. You can clearly see if I take e raised to x as t, तो ये जो होगा this will become t square minus 4 into 6 t square minus 5t plus 1 equal to 0. ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, you can see t square minus 4, 6t square minus 5t plus 1. तो from this you can see अगर ये 0 हुआ तो what is the value of t plus or minus 2, right? और इसका आप सॉल्व कर सकते हैं. this is 6t square minus, इसका फैक्टराइज कर लीजिए. this is minus 3t minus 2t plus 1 equal to 0, right? So this is 3t 2t minus 1 minus 2t minus 1 equal to 0. So what are the values? इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो. this is 3 1/3 और 1/2. ये आपको दो रूट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है, सो हमको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो नाउ सी t इज e raised to x, तो e raised to x is equal to t is equal to e raised to x. अब e raised to x is equal to plus minus 2. तो यहाँ देखो e raised to x माइनस कभी नहीं हो सकता बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो नेगेटिव 2 नहीं हो सकता. दैट इज e raised to x is equal to 2. So what is the value of x? X is equal to log 2 to the base e, right? This is first value, right? This is second क्या होगा? This is 1/3. तो e raised to x is equal to 1/3. So what is the value of x? This is log 1/3 to the base e. Okay, log base e, right? And similarly last one, this is e raised to x. This is 1/2. So what is x? This is log 1/2 on the base e. अब आपको sum of all the real roots फाइंड करना है. तो sum of roots क्या होगा? इनके roots की वैल्यू का एडिशन sum will be equal to, जैसे आप ऐड करोगे बेस सबका सेम है तो you can see this is log base e. ये एडिशन में आएंगे तो सब प्रोडक्ट में चला जाएगा. This is 2 into 1/3 into 2 will become 1/3. बराबर, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दिया. log m plus log n plus log p on the same base. तो यहाँ पे m into n into p हो जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या होगा? 1/3. So what is this value? This is minus log 3 to the base e. So what is the answer? Minus log 3 to the base e. That is option B is the answer for this question. Okay, so I hope this is clear. So now this is the next question. This is for a natural number n, that a n is 19 raised to n minus 12 raised to n. Then find the value of this expression. आपको इस expression का value find करना है. So you can see here आपको देखो 9, 10, a9, a10 और a8 को alpha 8 को relate करता है. So you can see here if I just substitute these values, this is 31 alpha raised to 9, alpha 9, alpha raised to 9, alpha 9 क्या होगा? 19 raised to 9 minus 19 raised to 9 minus 12 raised to 9, correct? Minus alpha 10, this is 19 raised to 10 minus 12 raised to 10, divide by this is 57 and you can see this is 19 raised to 8 minus 12 raised to 8. हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें वैल्यूज को. ठीक है, so now see what we can do is if I try to take some common terms लेने की कोशिश करते हैं. This is 31 into 19 raised to 9, ये minus 31 12 raised to 9 minus you can see this is 19 raised to 10 plus 12 raised to 10. ये हम मिलेगा upon 57
19 रेज टू 8 माइनस 12 रेज टू 8, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइट? एंड नाउ सी इफ आई टेक दीज टू टर्म्स, इफ आई टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसमें से यू कैन क्लियरली सी 19 रेज टू 9 कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज इफ आई टेक 19 रेज टू 9 कॉमन इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से, सो दिस विल बिकम 31 माइनस, और यहाँ पे होगा आपका 19, सो दिस इज 19 minus. Now same logic से you can see here if I take this term and this term, right? इसमें से आपका 12 raised to 9 common आ जाएगा. So this is 12 raised to 9 common, and you will see this is 31 और ये 12. So this is 31 minus 12 upon this is 57, और ये this is 19 raised to 8 minus 12 raised to 8. Yeah, बस expression आ गया, right? And now you see what is 31 minus 12. This is 31 minus 19. This is equal to 12. So this is 19 raised to 9 into 12 minus, you can see this is 12 raised to 9, और यहाँ से you can see this is equal to 19. You can clearly see 19. 31 minus 12 upon we have 57, और ये 19 raised to 8 minus 12 raised to 8. And now you see इसमें से आप देखो 12 into 19 कॉमन निकाल सकते हो. तो जैसे आपने 12 into 19 कॉमन लिया, तो दिस विल बिकम 19 raised to 8 minus 12 raised to 8 divide by 57, and this is 19 raised to 8 minus 12 raised to 8. And now you can see this is cancelled. So what is this value? This is, you can check this. This is 3. This is 4. So what is the answer? This is equal to 4, right? So that's it for this. That is equal to 4. That is the answer for this question. अब इसमें quadratic का ऐसा कोई relation नहीं है, but this type of question generally you have done in quadratic expression, जहाँ पे आप Newton's formula वगैरह भी use करते हो, higher powers को lower powers में convert करते हो. So this is a standard way to solve some of the questions from quadratic equation. Okay, so that is why I have taken this in the quadratic equation. बाकी as such quadratic का इस पे कोई use नहीं है, ठीक है? So I hope this is clear. So the next question is, let A and B are the roots of this equation. A and B are some real numbers, and this equation has a repeated root alpha, and alpha and beta are the roots of this equation. Then find the value of alpha square plus beta square. ठीक है? अब देखो, अगर आपको alpha square plus beta square फाइंड करना है, तो आपको ये पहले इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो आपको ये b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? अब हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ b? तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है दैट अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो भाई, ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 इक्वल टू 0. इफ बोथ द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा, दैट मींस सम ऑफ रूट्स दैट इज 2 अल्फा इज 2b by a, मतलब अल्फा इज इक्वल टू b by a, and product of roots alpha square, this is equal to 15 by a. करेक्ट? देखो आपको सिर्फ b से मतलब है, b का वैल्यू, तो a को हम एलिमिनेट कर देते हैं. a को एलिमिनेट कैसे करोगे? आप डिवाइड कर दो. दैट इज इफ आई डिवाइड दिस टू अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, ये 1 by अल्फा. इफ आई डिवाइड दिस टू, यू कैन सी दिस इज कैंसिल, दिस इज b by 15, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय b. ये आपके पास आ गया अल्फा का वैल्यू, ठीक है? Now, how will you get the value of b? You can clearly see alpha is the root of second equation also. तो ये second equation को भी satisfy करना चाहिए, मतलब 15 by b square. क्या किया हमने? ये जो अल्फा का वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया हमने. दिस इज 15 by b square minus 2b, 15 by b, और ये क्या हो गया? प्लस 21 is equal to 0. Correct? So now you can easily solve this equation. You can see this is 15 by b whole square is equal to, ये कैंसिल हो गया 30 और 30 और ये 21 मतलब 9, तो this is equal to 9. Correct? So what is this? This is, you can see 15 by b is equal to plus or minus 3. Okay? 15 by b, correct? So this is b is equal to प्लस माइनस 5. ये हमारे पास है b का वैल्यू प्लस माइनस 5.
अब क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब तो आप बहुत इजीली कर ही सकते हो। दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 2b, दैट इज माइनस 2b बाय a, मतलब 2b, ठीक है, 2b sum of roots whole square minus 2 alpha beta. What is alpha beta? Product of roots of this, that is 21. This is 21. So you can say this is b square. What is b square? B square is equal to 25, right? B square equal to 25. So this will become 100, correct? And this is minus 42. So what is the answer? This is equal to, you can see this is equal to 58, right? That is option B is the answer for this question. I hope this is clear, ठीक है? तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, देखो बीटा का वैल्यू, सो बी का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया, उसके बाद तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके? सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. So now this is the next question. You have to find the sum of all the cubes of all the roots of this equation. आपको इसके जो भी रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स होंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके क्यूब्स का सम फाइंड करना है, ठीक है? अब इसमें देखो ध्यान से, I can convert this equation into a quadratic form very easily. कैसे? You can see here this is a very standard type of equation. इसमें आप देखो coefficient from left and right are equal in magnitude. You can see 1 1, 3 3 and 2 coefficients, ठीक है? So you can see here I can, if I divide by x square, if I divide by x square on both sides, अब x स्क्वायर से हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज x कैन नॉट बी जीरो. यू कैन क्लियरली सी x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा इन इसको, करेक्ट? तो मतलब हम x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज x कैन नॉट बी 0. यू कैन सी सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? सो नाउ सी इफ आई डिवाइड बाय x स्क्वायर, जैसे आप डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 by x plus 1 by x square equal to 0. And you can see here, if I collect these terms, this is x square plus 1 by x square minus, you can see this is 3x minus 1 by x, और ये minus 2 equal to 0, right? If I just take this x minus 1 by x, इसका अगर आप t assume कर लो, तो you can see this is, if I square on both sides, this is x square plus 1 by x square will become t square plus 2. ये minus 2 को हम साइड पे लेके जाए, करेक्ट? So this equation will become t square plus 2. ये t square plus 2 minus 3t और ये minus 2 equal to 0, right? So यहाँ से you can see this is t square minus 3t is equal to 0. ये आपके पास इक्वेशन आ गया, right? And now you see what is this? This is t into t minus 3 is equal to 0. That means t is equal to 0 or 3. Correct? So t is equal to 0 और t equal to 3 आपका सॉल्यूशन आ गया. अब t equal to 0 और t equal to 3 को आप ध्यान से देखो. t equal to 0 आप जैसे पुट करोगे यहाँ पे, तो this will become x square x minus 1 by x is equal to 0. तो यहाँ से आपको दो रूट्स क्या आ जाएंगे? This is x square minus 1 equal to 0. That means x is equal to plus or minus 1. और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा x minus 1 by x, x minus 1 by x is equal to 3. So you can see this is x square minus 3x minus 1 equal to 0. इसको अरेंज करेंगे, you will have this. अब इसके जो रूट्स होंगे इररेशनल नंबर, इररेशनल रूट्स होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या है? क्वेश्चन ये है, you have to find the sum of cubes of all the roots, ठीक है? अगर भाई इसके रूट्स देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो 2 रूट्स विल बी दीस वैल्यूज प्लस माइनस 1, करेक्ट? और 2 रूट्स यहाँ से आपको मिलेंगे. तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये अल्फा और बीटा मान लेते हैं और यहाँ से ये गामा और हम डेल्टा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू तो 0 हो जाएगा. आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस
डेल्टा क्यूब, सम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, करेक्ट। तो यू कैन क्लियरली सी, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो जीरो हो गया, बिकॉज 1 और -1 का क्यूब करके ऐड करोगे तो वो जीरो हो गया। अब एक तो ये है कि आप गामा और डेल्टा का वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आई कैन से, आपको अगर ये फाइंड करना है तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 3 गामा डेल्टा, करेक्ट। ये गामा डेल्टा, इसमें हमने गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा का वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट इज दिस, यू कैन सी नाउ, दिस इज gamma plus delta. What is sum of roots of this equation? Sum of roots of this equation is 3. So this is 3 into, this is 3 square, that is 9, और ये plus, what is gamma plus delta? Gamma plus delta is -1. Sorry, gamma into delta is -1. तो gamma into delta -1 पुट करोगे तो ये +3 हो गया, करेक्ट। So what is this value? This is equal to 36. I hope this is clear. So this is how we can solve this question. अब इस टाइप के जो इक्वेशंस हैं, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड टाइप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कैसे हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया एंड देन वी गॉट द सॉल्यूशन। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिक पार्ट यूज किया है गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब फाइंड करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So this is the next question. The sum of all the roots of this equation is log p to the base e, then what is the value of p? This is what we have to find. So now see, आपको find करना है sum of all the roots of this equation, sum of all the roots of this equation. So now see, if you just simplify this, इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, e raised to, हमने क्या किया, e raised to x से multiply कर दिया इसको, e raised to x से multiply जैसे आप करोगे this will become e raised to 3x plus 11 e raised to 2x plus 81 by 2 e raised to x minus 45 is equal to 0. ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। e raised to x से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लिया। Now you see, this is the cubic equation in e raised to x. You can see, if I take e raised to x as t, this will become t cube plus 11t square plus 81 by 2 e t minus 45 is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। You have to find sum of all the roots of this equation. अब देखो ध्यान से, if I take this equation, तो इसके 3 रूट्स होंगे, t1, t2, t3, करेक्ट। अब t1, t2, t3 क्या होंगे, किसी x पे आपको वैल्यू मिलेगा which is e raised to x1, this is e raised to x2, this is e raised to x3. अब you have to find the sum of all the roots of this. तो आप ध्यान से देखिए, if I just find the product of roots, what is product of roots? t1, t2, t3. What is the product of roots of cubic equation? ये constant term minus 45 divided by leading coefficient which is 1 with a negative sign. So what is the product of roots here? That is t 45. अब अगर ये 45 है, what are t1, t2, t3? e raised to x1, e raised to x2, e raised to x3. तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? This is e raised to x1 plus x2 plus x3. This is equal to 45. और x1, x2, x3 जो इसके रूट्स है, क्योंकि इक्वेशन x के अंदर है, ठीक है। So what is this? This is x1 plus x2 plus x3 will be equal to log 45 to the base e. So that is the answer for this question. You can see this is log 45 to the base e is equal to x1 plus x2 plus x3. So I hope this is clear. Easy question है, बस ये थोड़ा सा ध्यान को रखना है। आप ऐसा नहीं कि इस इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए एंड वी आर फाइंडिंग दिस, आपको सिर्फ सम ऑफ रूट्स फाइंड करना था। तो हमने वो पावर्स को इसको एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स विल ऑटोमेटिकली ऐड, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So this is the next question. The question is alpha, beta, gamma. Alpha, beta are the roots of this equation, and alpha, gamma are the roots of the second equation. Then and beta plus gamma is given. Beta plus gamma is 3 plus root 2. Then you have to find the value of alpha plus 2 beta plus gamma ka whole square. So you can see here alpha, beta are the roots of first equation. मतलब sum of roots alpha plus beta. This is equal to 4 lambda.
और अल्फा बीटा का वैल्यू दिस इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते सम ऑफ रूट्स, और सेकंड इक्वेशन से गामा और अल्फा, तो अल्फा प्लस गामा दिस इज सम ऑफ रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा इसका, दिस इज अल्फा गामा, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3 लैम्डा रूट 3, ये हमारे पास करेक्ट। और एक कंडीशन और गिवन है, दैट इज बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 रूट 2, तो बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2, ये हमारे पास कंडीशन है, राइट। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। अब इसको आप ध्यान से देखो, हमको अगर ये वैल्यू फाइंड करना है तो यू कैन सी दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। So you can see what is alpha plus beta. Alpha plus beta is 4 lambda, and beta plus gamma, what is beta plus gamma? Beta plus gamma is 3 root 2. तो आपको देखो अल्टीमेटली बस लैम्डा का ही वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपने लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लिया, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। तो यू कैन सी हियर, इफ यू जस्ट चेक दिस, इफ आई ऐड दीस टू, जैसे हम इसको ऐड करेंगे, यू कैन सी दिस इज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब बीटा प्लस गामा का वैल्यू तो 3 रूट 2 है, so this is 3 रूट 2, correct। this is equal to if I add this is 4 lambda plus 3 root 2 plus 2 root 3, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट। आप और तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये कैंसिल हो गया, दैट मींस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 लैम्डा, 2 का फैक्टर कैंसिल कर दो, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस रूट 3। तो ये अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा आल्सो, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो आप बीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे? इफ आई सब्ट्रैक्ट दीस टू, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं दीस टू, तो आप ध्यान से देखो बीटा माइनस गामा जो होगा, बीटा माइनस गामा, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीस टू, this is 4 lambda minus 3 root 2 minus 2 root 3, ठीक है। एंड नाउ सी, आपको अल्फा का वैल्यू तो मिल गया, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, तो इसके लिए क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो आपको देखो जैसे आप इनको ऐड करेंगे, इफ आई ऐड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो आपको बीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस इज 2 बीटा, जस्ट ऐड दिस एंड दिस। जैसे आप ऐड किया तो देखो ये 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 लैम्डा माइनस 2 रूट 3। सो व्हाट इज दिस बीटा, बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस रूट 3। सो ये वैल्यू आ गया आपका बीटा का, करेक्ट। जस्ट एडिंग दिस टू इक्वेशंस, यू कैन सी दिस इज 2 बीटा, ये 2 बीटा ऐड करोगे, 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 2 रूट 3, 4 लैम्डा माइनस 2 रूट 3। So now see you have got values of alpha and beta. अब देखो अल्फा और बीटा आपको पता चल गया, तो अल्फा बीटा आपको पता है, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट देखो, दिस इज इक्वल टू 5, तो वी कैन से अल्फा इंटू बीटा, अगर 5 है तो यू कैन सी, इफ आई मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा, यू कैन सी दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस रूट 3 इंटू 2 lambda minus root 3, this is equal to 5. So this is equal to 4 lambda square minus 3 is equal to 5. So you can say this is equal to lambda square is equal to 2, right? This is equal to 2. तो lambda का वैल्यू आ गया देखो √2 या minus √2, right? अब we have to find this final answer. तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, what is alpha plus beta? This is equal to 4 lambda. This is 4 lambda. ये वाले हमको फाइंड करना है, उसको हमने बीटा को ब्रेक कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इज 4 लैम्डा, एंड व्हाट इज बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, you can see where is beta plus gamma, beta plus gamma is 3 root 2, so this is 3 root 2. तो ये आपको फाइंड करना है, this is what you have to find, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, that is what you have to see. So the best way is, rather than doing this, what is lambda plus or minus √2,
So you can see if I put plus minus root 2 here, this is 4 root 2 plus 3 root 2 whole square, or 4 minus root 2 plus 3 root 2 whole square, right? So you can say this is equal to 7 49 98. This is 98, and what is this? This is root 2, that is 2. So either this will be equal to 98 or this will be equal to 2. So we are getting two answers, that is 98 or 2. So both are the correct answer. So I hope you have understood how to solve this question, right? Now this is the next question from JEE Mains 2022. अब देखो, this type of question we have already seen. This type of question, यहाँ पे we have to find the number of real roots of this equation, real solutions of this equation. You can see here, this is if I take e raised to x को अगर हम t assume करें, ठीक है? So you can see this is e raised to x, that is t raised to 4 minus plus 4 t cube minus 58 t square plus 4t plus 1 equal to 0. Correct? ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है. And now just observe this. Coefficient from left and right are same. So you can see this is if I divide by t square. अब t square से आप divide कर सकते हो, because again t cannot be 0. T cannot be 0 because e raised to x अभी 0 possible नहीं है. So you can see this is t square plus 4t minus 58 plus 4 by t plus 1 by t square is equal to 0. हमने t square से divide कर दिया. So you can see this is t square plus 1 by t square, correct, plus 4t plus 1 by t, और यहाँ से ये minus 58 equal to 0, right? And now see, if you want to solve this equation, you can see if I take t plus 1 by t is equal to some z, ठीक है? तो this will become z square. यहाँ पे देखो, this is t square plus 1 by t square is equal to z square minus 2. हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दिया. यहाँ पे प्लस 2 होगा तो वो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज z स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट. ये प्लस 4z और ये माइनस 58 इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन बनेगा, फाइनल इक्वेशन बनेगा, करेक्ट. एंड नाउ सी this is, if I solve this is z square plus 4z minus 60 is equal to 0, ठीक है? Now you can solve this equation easily. This is, you can see, इसको तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का माइनस 4ac अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज, आई कैन से z प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 64 is equal to 0. I hope this is clear. Z square plus 4z plus 4 minus 60, that is z plus 2 whole square is equal to 64. So you can say what is z? Z plus 2 is equal to 8, or z plus 2 is equal to minus 8. So what is z का value? Z is equal to 6 और z is equal to minus 10, ठीक है? अब z जो है, what is z? Z is t plus 1 by t, और t क्या है? e raised to x. So can we say this is effectively e raised to x plus 1 by e raised to x is equal to 6, or e raised to x plus 1 by e raised to x is equal to minus 10. ऐसा आपके पास आएगा. So this is, I can say this is not possible because e raised to x is always positive value. अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, e raised to x plus 1 by e raised to x equal to 6. If I just try to solve this, if I arrange this is e raised to 2x plus 1 is equal to 6 e raised to x, or you can say this is e raised to, I'll just write it here, this is e raised to 2x minus 6 e raised to x plus 1 is equal to 0. ये आपके पास आया, ठीक है? अब देखो, इन दिस केस अगर इसके रूट्स आएंगे, ठीक है, इसके e raised to x में इक्वालिटी है,
अगर e रेस टू x की वैल्यूज जो कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसके अगर रूट्स दोनों पॉजिटिव आ गए तो दो रूट्स होंगे। एक रूट अगर पॉजिटिव आया, एक रूट नेगेटिव आया, तो इसका एक ही रूट पॉसिबल होगा, क्योंकि e रेस टू x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और e रेस टू x अगर इसके दोनों रूट नेगेटिव आ गए, दैट मीन्स इसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक भी रूट पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज e रेस टू x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना होगा कि इसके जो रूट्स हैं, इधर बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो वो चेक करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो e रेस टू x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 36 minus 4ac upon 2a, and you can clearly see what is this. This is 6 plus minus root 32 divided by 2, and you can clearly see both the roots are positive, both the roots are positive, मतलब e raised to x के corresponding दो वैल्यूज मिलेंगे, पॉजिटिव है तो x का उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, दो रूट्स मिलेंगे। मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहां से कोई रूट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नेवर पॉसिबल, e रेज़ टू x प्लस 1 बाय e रेज़ टू x इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, कोएफिशिएंट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आर सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होते हैं कोएफिशिएंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So now this is the next question. The question is fx is a quadratic polynomial such that f of minus 2 plus f of 3 is 0 if one of the root of fx equal to 0 is minus 1, मतलब fx quadratic polynomial का एक root minus 1 है, then find the sum of roots of fx, sum of roots find करना है। ठीक है, so quadratic polynomial whose one root is minus 1, so can I say जो quadratic polynomial होगा that will be equal to sum a x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा। हमने उसका एक रूट मान लिया अल्फा है, राइट, और एक रूट ऑलरेडी गिवन है, दिस इज माइनस 1, करेक्ट। एंड नाउ सी आपको f ऑफ माइनस 2 प्लस f ऑफ 3 0 गिवन है। व्हाट इज f ऑफ माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज f ऑफ 3, x इज इक्वल टू 3 हम पुट कर दें, दिस इज 4a एंड दिस इज 3 minus alpha, this is 3 minus alpha, करेक्ट। अब जैसे इनको आप ऐड करोगे शुड बी 0, तो मतलब a 2 plus alpha, करेक्ट, एंड दिस विल बिकम 12 minus 4 alpha, this should be equal to 0। तो यहां से you can clearly see ये तो कैंसिल हो गया, this is 3 alpha is equal to 14, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया 14/3। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे, 14/3 और एक रूट क्या है -1, ऑलरेडी गिवन है। तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स विल बी 14/3 -1 which is 11/3, correct, this is 11/3, that is option A is the answer for this question। So I hope this is clear, right?